So, good evening, students. Today, I am just giving the second lecture on the axial load and beamers, right? And my topic, that is very important one. Here I will take some numericals regarding whatever we have taught till now. But before going for the numerical portions, there are some certain important parameters which we have to discuss first. So, first of all, which is very important one, and you can say that in GATE sometimes they will ask in the theory questions. So, the important parameter which I am taking first, that is, you can say axial rigidity, right? So, this is your axial rigidity, right? So, axial rigidity. Rigidity means what? What is the rigidity? We sometimes say that this material is very rigid, or you can say this material is less rigid. What does it mean? Actually, we want to say we want to explain this thing that it is not easy, this material is not easy to deform when we say that this material is rigid. Means this material is not easy to deform. So here I am telling you that we just say that it is the measurement of the deformation also, because we are just measuring the value of a deformation, whether it is more or whether it is less. That depends upon the rigidity, whether this material is having the more rigidity. So more rigidity means less deformation, and less rigidity means more deformation, right? So इसका जो definition होगा, वो क्या definition होगा? It is defined as the measure. It is defined as a measure of rigidity of a body under external load. Under axial load, sorry. This is, you can say, under axial load. Means that when we will apply the axial load on the body, and we have to see that how much this material is rigid. This is the measurement of the rigidity. It is the measure of the rigidity. It is the measure of the rigidity of a body under axial load. Means if the rigidity is more, right? So there is a less deformation. As I have told you, rigidity means what? That is, we are measuring the deformation, right? We are measuring the deformation also. So means, तो कैसे डिफॉर्मेशन मेजर करेंगे? अगर मोर रिजिडिटी है, मोर rigidity, that implies less deformation and less rigidity more deformation. So I want to say that it is also a measure of deformation, right? Less rigidity, more deformation, and more rigidity, less deformation, right?
Now, how we will calculate this? How we will calculate the rigidity of a body? We just use the deformation equation, and by using the equation of deformation, by using the equation of deformation, by using the equation of deformation क्या होगा? Equation of deformation क्या है? Delta L is equal to P into L AE. So this is the deformation, right? Delta L, this is equal to P into L upon AE. Or you can say delta L upon L, this is equal to P upon AE for a given load. So here given load is P. If I will consider the unit load for one unit load, right? So for one unit load, इसकी कितनी डिफॉर्मेशन होगी, कितनी रिजिडिटी है, तो यू कैन से therefore delta L upon L proportional to 1 upon AE. अगर हम जहां से देखें, लोड तो गिवन है, this is constant, you can say. So delta L upon L, this is proportional to 1 upon AE. Or you can say from here, or you can say R deformation is inversely proportional to 1 upon AE. Is inversely proportional to 1 upon AE. तो जहां पे हमने क्या लिखा था? More rigidity, less deformation. That is the inversely proportional. Less rigidity, more deformation. So this factor 1 upon AE. So this factor AE is called the AE is the rigidity. You understand? So what is the formula of rigidity? A into E, cross sectional area into Young modulus of elasticity. This is the rigidity, right? तो एक्चुअल रिजिडिटी क्या है आपका? AE. So AE, this is your actual rigidity, right? So next one is first the अब सेकंड जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं. दैट इज योर एक्शियल स्टिफनेस. So what is axial stiffness? इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं. It is defined as the axial load required for unit deformation, right? तो क्या कहा इसने? इट इज डिफाइंड एज द एक्चुअल लोड रिक्वायर्ड फॉर द यूनिट डिफॉर्मेशन. अगर एक बॉडी के ऊपर हमें एक यूनिट डिफॉर्मेशन करना है, मींस 1 mm, यूनिट मींस 1 mm डिफॉर्मेशन करना है, सो देन हाउ मच एक्चुअल लोड वी रिक्वायर फॉर दैट? So that is called the axial stiffness, right? I will just give you an example also. As you know that in case of spring, we say that the
stiffness of the spring is 10 Newton per mm, right? So 10 Newton per mm means that B require 10 Newton load for 1 mm deformation, right? So in the same way, like the same way as we are calculating the stiffness in the spring, like the same way, actual stiffness is also there, that how much deformation, how much actual load we require for the unit deformation. You understand this thing? कि एक unit deformation के लिए how much you require the axial load. So this is the axial stiffness. So this axial stiffness also we can calculate by using the equation of deformation. तो equation of deformation जैसे मैंने आपको बताया था, equation of deformation क्या था, right? जहां deformation की क्या equation थी, that is delta L, this is equal to P into L upon A E, right? P into L upon A E. So you can say P upon delta L, this is equal to delta L upon P. इसे इस तरीके से कर लीजिए, P L So therefore P upon delta L, P upon delta L, this is equal to A E upon L. This is equal to A E upon L. Load per unit deformation, right? Load deformation delta L, P upon delta L, this is equal to A E upon L. So A E upon L, this is called the axial, this is called the axial stiffness. This is called the axial stiffness. So these two are the important parameters, axial rigidity and axial stiffness. So I have given the definitions and also explained them, that how we will calculate them by using the equation of deformation, right? So now next is, which is a very important one, very important, that is the calculation of internal force. So calculation of internal force, almost you can say that almost in every chapter of the strength of material, we have to calculate the internal force for some calculating the numericals. So you can say this is the basic. This is the basic thing which we have to understand it well. And this is a very important one. Load may be different. Here we are only using the actual load. Load may be different in some chapters. What internal force we have to calculate? To calculate the stress. In order to calculate the stress, we have to calculate the internal force. So this is a very important, I can say, topic, and here I will try to explain you in such a way that you must, I will say that you must completely understand its logic, completely understand its concept, so that you will not forget at any time, anywhere where you have to use it. इसके लिए be attentive, you must give your complete attention towards the lecture and try to understand it, right? So we will first start the calculation of internal force. Let's see. So calculation, इसको अच्छे तरीके से करते हैं. Calculation
calculation of internal force. This is a new lecture, new topic. So calculation of internal force. As I told you, this topic is very important one, because in order to calculate the stress at any plane, first we have to calculate the internal force. As I have told you that this calculation of internal force, this is very important in all the chapters of the strength of material. Load may be different. Here we are using the axial load. Load may be different, that is the transfer load. You can say torque is acting, just like the different types of the loads are there. So in all the different types of load, you have to calculate the first internal movement. If you are using the torque there, you have to calculate the internal movement, internal force. So this is a very important topic, and I want that you must all will give a complete attention towards this. देखिए, practically I just try to explain you by taking an example. You can say by taking a problem. Suppose I have an axial bar, right? This is your axial bar. Right? So this is your axial bar. So axial bar is having, suppose this is your A point, here is your B point, here is your C point, and here is your D point, right? So different loads are acting on the axial bar. Different axial load is acting on the bar at the different points. मैं कहता हूं कि A के ऊपर ये लोड आपका है 100 किलो न्यूटन, राइट? पॉइंट B के ऊपर जो आपका लोड है, दिस इज 170 किलो न्यूटन. पॉइंट C के ऊपर जो लोड है आपका, दिस इज योर 120 kilo Newton, and the fourth one is yes, this is 50 kilo Newton. So this is 50 kilo Newton, right? Let us understand now. I have taken the axial, I have taken the bar A, B, C, D. There are different points on the bar. I have taken the point AB, BC and CD. So you can say the bar is having the three planes, that plane AB, plane BC and plane CD, right? Now at point A, B, C and D, different types of the loads are acting. You can say at point A, 100 kilonewton axial load is acting, that is tensile. At point B, 170 kilonewton load is acting, that is compressive, right? So this is at C, 120 kilonewton load is acting, and at point D, 50 kilonewton load is acting, right? So you can say this is your axial bar, and on the bar at the different points, different axial load is acting, right? Now look here. Suppose I say these are the three planes, plane AB, plane BC and plane CD. So in order to calculate the stress, if I say calculate the stress in the plane AB or in plane BC or in plane CD, calculate the stress. So what you have to do first step you must remember. If you have to calculate the stress on the plane, your first step is to calculate the internal force, right? So to calculate the internal force on that plane, first आपको internal force चाहिए
क्योंकि यू नो स्ट्रेस दिस इज इक्वल टू P अपॉन A. P, what is P here? Here P is not external load. Here P is the internal force. And stress is internal force per unit area, as you already know this thing. So for calculating the stress, when the different external loads are acting on the bar, you have to calculate that. अब देखो किस तरीके से कैलकुलेट करना है, स्टेप बाय स्टेप ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपने जिस प्लेन के ऊपर, जिस प्लेन पे आपने स्ट्रेस को कैलकुलेट करना है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरनल फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो मैं कहता हूं कि इंटरनल फोर्स कैलकुलेट, पहले मैं प्लेन ले लेता हूं ए बी. राइट, देखिए प्लेन ए बी, मैं कहता हूं प्लेन ए बी में आप इंटरनल फोर्स कैलकुलेट करो. प्लेन ए बी, मुझे प्लेन ए बी में इंटरनल फोर्स कैलकुलेट करनी है. राइट, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे ये प्लेन ए बी है, आई विल टेक द सेक्शन हियर. क्या करेंगे, सेक्शन लेंगे. आई विल टेक द सेक्शन हियर. एज यू नो दिस बार इज अंडर इक्विलिब्रियम. बार क्या है, होल ऑफ दिस बार इज अंडर इक्विलिब्रियम. कैलकुलेट कर रहे थे, दिस इज 100, this is going toward this side, this is going toward 100 plus 120, 220, 170 plus 50, 220, right? So the load which is going away toward this side or that side, both the loads are equal, so you can say that bar is under equilibrium, right? bar क्या है, under equilibrium है. इसका स्टेप जो क्या करेंगे हम, मैं अभी एक्सप्लेन करने के लिए काफी स्टेप आपको दूंगा. एंड व्हेन यू गेट द प्रैक्टिस ऑफ दैट, सो देन देयर इज नो नीड टू डू सच टाइप ऑफ थिंग्स इन योर, यू कैन से फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. लेकिन इसको समझाने के लिए मैं कंप्लीट वन बाय वन स्टेप आपको दूंगा, ठीक, किस तरीके से आपने करना है. और एक दफा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सो देन इट इज वेरी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट द इंटरनल फोर्सेस देयर. तो प्लेन ए बी में करना है, तो क्या किया मैंने, एक सेक्शन ले लिया. राइट, अब सेक्शन लेने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको जहां पे ये सेक्शन है, इस प्लेन से मैंने बार को काट दिया. तो आपका ये मैंने काट दिया बार को. राइट, ये तो 100 किलो न्यूटन है. तो ये आपका दूसरा आ गया पार्ट. राइट, दिस इज योर सेकंड पार्ट ऑफ द बार. दिस इज योर सेकंड, तो कह सकते हैं दिस इज योर लेफ्ट पार्ट ऑफ द बार एंड दिस इज योर राइट पार्ट ऑफ द बार. राइट, इसमें आपका 100, ये मैंने लिख दिया 100 किलो न्यूटन. जो राइट पार्ट है इसमें ये फोर्स एक्ट कर रही है आपकी 170 किलो न्यूटन, 120 किलो न्यूटन एंड 50 किलो न्यूटन. राइट, so I have got this in two parts. This is left part and the second part. अगर ये बार आपकी इक्विलिब्रियम में है, right, that is the sigma fx equal to 0, right? All the forces are on the x direction, they are 0. तो J भी आपका क्या होगा, because you have got this, तो J भी आपका sigma fx जहां पर भी 0 होना चाहिए और सिग्मा fx जहां से भी 0 होना चाहिए. You understand this point? You understand this point, right? So to calculate the internal force, I am calculating the internal force in the plane AB. Right, now you try to understand. ध्यान से सुनिए मैं क्या कहता हूं, ठीक है.
जहां पे क्या लिखा है, फॉरगेट इट, जस्ट सुनिए ध्यान से। आइदर यू टेक द लेफ्ट पार्ट और यू टेक द राइट पार्ट। मैंने ये दोनों पार्ट आपने अगर ए बी प्लेन के बीच में इंटरनल स्ट्रेस फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, इसको आपने काटा, नाउ इट हैज टू पार्ट्स दैट इज लेफ्ट एंड राइट। तो आप इंटरनल फोर्स जो है कैलकुलेट करने के लिए आप आइदर यू टेक द लेफ्ट पार्ट or the right part. But now your question is, here I have written both the part here. This I want to show you that whether you will take the left part, you will get the same magnitude of the force, or you will take the right part, you will also get the same magnitude of the force. This I just want to tell you. इसके लिए मैंने इसको दो पार्ट में काटा। First I will take the left part. तो देखिए मैंने इंटरनल फोर्स निकाली थी, मैंने ये सेक्शन लिया ए बी के बीच में, ये लेफ्ट पार्ट है। तो मैंने ये कहा कि अगर जे आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में है दिस बार, तो जे पार्ट भी आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए। सो इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस, बिकॉज हियर द फोर्स 100 किलो न्यूटन इज एक्टिंग, एक्शन टेंसाइल फोर्स इज एक्टिंग हियर, सो इट मींस दैट हियर आल्सो 100 here also 100 kilonewton, so that this part will be balanced. जहां पर भी क्या होना चाहिए, 100 kilonewton होना चाहिए। So you can say that internal force in the plane AB, अगर मैं लेफ्ट साइड से करूं प्लेन, मैं इसको ऐसे लिखता हूं PAB, इंटरनल force is equal to 100 kilonewton, ठीक है, लेफ्ट पार्ट एज पर द लेफ्ट पार्ट, ठीक है। अब मैं राइट पार्ट के ऊपर आपको ये प्रूव करने के लिए बताना चाहता हूं कि अगर आपने लेफ्ट पार्ट लिया था तो इंटरनल फोर्स आई 100 किलो न्यूटन, क्या राइट पार्ट से भी हमें 100 किलो न्यूटन फोर्स मिलेगी? जस्ट सी हियर, दिस इज योर राइट पार्ट, दिस इज आल्सो, this bar is also under equilibrium होनी चाहिए। let us calculate the forces here on this part। 170, this is going away from the plane, this is your plane, this is going away from the plane, right? 170 plus 50 plus 170 plus 50 is how much? 220। So right part अगर मैं लेता हूं 170 plus 50 minus 120, right, minus 120 because 120 is the compressive force। मैंने अभी आपको साइन कन्वेंशन के बारे में नहीं बताया, अभी बताऊंगा मैं। तो आपको इसमें साइन कन्वेंशन क्या लेना है ये भी अभी सीख लें, आप नोट कर लें। फॉर टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स जहां पे क्या होगी, द फोर्सेस व्हिच आर गोइंग अवे फ्रॉम द प्लेन, व्हिच आर गोइंग अवे फ्रॉम द सेक्शन, जो फोर्सेस सेक्शन से अवे जा रही है, जैसे ये सेक्शन था आपका, अब देखो ये फोर्स इधर को जा रही है, दिस इज योर टेंसाइल फोर्स एंड दिस इज हैविंग द पॉजिटिव साइन। कंप्रेसिव फोर्स वो होगी जो फोर्सेस व्हिच इज कमिंग टुवर्ड द प्लेन, जैसे ये 120 है, दिस इज कमिंग टुवर्ड दिस सेक्शन, नॉट प्लेन कमिंग टुवर्ड दिस सेक्शन, सो दिस इज द कंप्रेसिव फोर्स। तो साइन कन्वेंशन जो आपका होगा, मैं इधर लिख देता हूं, साइन कन्वेंशन फॉर टेंसाइल लोड, positive, right, and for compressive load क्या होगा? नेगेटिव, राइट। समझाइए बात, टेंसाइल लोड के लिए पॉजिटिव लेंगे, कंप्रेसिव के लिए नेगेटिव लेंगे। तो जहां पे थे हम, सो दिस इज 170 प्लस 50, 220 minus 120, this is also equal to 100 kilo Newton, right? So in order to balance this bar, if you have to balance the right side, right part of the bar,
So in order to balance this, we require how much this force? 100 kilonewton, and this is also 100 kilonewton. This is 100 kilonewton. So, but the fact I have given you, either you take it from the left part or you take the right part. The magnitude of the force is same. You understand this? So PAB is 100 kilonewton. You understand now कि किस तरीके से फोर्स निकालनी है? जिस भी प्लेन में अपने फोर्स इंटरनल फोर्स निकालनी होगी वहां पे आप सेक्शन ले लीजिए। तो सेक्शन के इस साइड देख लीजिए फोर्सेस क्या है, या सेक्शन के इस साइड देख लीजिए फोर्सेस क्या है। वी हैव टू बैलेंस देम। इस साइड से एक फोर्स थी 100 किलो न्यूटन, तो मैंने यहां से काटा, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहां पे 100 किलो न्यूटन फोर्स लगाना पड़ा, तभी तुझे इक्विलिब्रियम में आई। दिस पार्ट देन ओनली बी इन द इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसने कहा है कि अगर बार आपकी अंडर इक्विलिब्रियम में है तो आप इसका मतलब हर पार्ट आपका इक्विलिब्रियम में होगा। यही कंडीशन आपने राइट पार्ट में दी। अगर मैं राइट साइड से सपोज मैं कहता हूं मैं राइट साइड से कैलकुलेट करना चाहता हूं इंटरनल फोर्स यहां पे कितनी है, तो अगर आप राइट साइड से कैलकुलेट करते हैं यू विल आल्सो गेट द सेम वैल्यू, राइट? यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट वन आई विल टेक द इंटरनल फोर्स ऑन द प्लेन BC। अब देखो इसको किस तरीके से आपने कैलकुलेट करना है। दिस इज फॉर प्लेन AB। आप सेकंड देखिए कि अगर मैंने इंटरनल फोर्स BC में कैलकुलेट करनी है, इसको भी मिटा दीजिए, प्लेन AB वाला आपने कर दिया, राइट? मैं कहता हूं कि इंटरनल फोर्स प्लेन BC इसमें फाइंड आउट करें इंटरनल फोर्स। सो कट दिस, कट द प्लेन BC फ्रॉम हियर। मैंने सेक्शन ले लिया, राइट? अब जब सेक्शन लिया तो जो दो पार्ट हो गए, एक प्लेन के, एक सेक्शन के इस साइड पार्ट और एक सेक्शन के इस साइड पार्ट। आइदर यू कैलकुलेट द इंटरनल फोर्स फ्रॉम द दिस साइड पार्ट और यू कैलकुलेट द इंटरनल फोर्स फ्रॉम दैट साइड पार्ट, राइट? जहां आप इस साइड से कैलकुलेट करें, राइट साइड से कैलकुलेट करें, तो जहां लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करें, राइट? जहां लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करें, तो मैं दोनों साइडों से कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा। सेम प्रोसीजर, कट द बार इनटू पार्ट्स। तो मैं ये बार को काट दिया, राइट? और ये दूसरा पार्ट हो गया आपका, राइट? देखिए, तो ये जो लेफ्ट पार्ट था जहां पे एक फोर्स थी आपकी 100 किलो न्यूटन और एक फोर्स है आपकी 170 किलो न्यूटन, राइट? तो अगर राइट साइड की बात लें, राइट साइड की बात लें, एक फोर्स है आपकी 120 किलो न्यूटन एंड 50 किलो न्यूटन, राइट? देखिए आपने बुक्स में पढ़ा भी होगा, शायद बुक्स के से आपने न्यूमेरिकल्स भी किए होंगे। बुक्स में सब कुछ मिलता है, दे आर द स्टैंडर्डाइज्ड बुक्स, बट समटाइम्स क्या होता है कि वहां पे आपको खुद पढ़ने से आपको इतना कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, और जो बुक में लिखा होता है उसी हिसाब से आप लोग करते हैं। तो ये जो मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं, अगर आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो ये कंसेप्ट आपको कभी नहीं भूलेगा कि हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स, राइट? इसलिए मैं इसके ऊपर इतना टाइम लगा रहा हूं कि पूरा प्लेन AB को भी लिया, BC को भी लिया और फिर इसको दो पार्ट में कट किया। किस तरीके से करते हैं, सो दैट कि एक दफा आपको ये कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर होता है तो उसके बाद आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इन फ्यूचर। तो देखिए लेफ्ट साइड, तो इसमें मैंने क्या है आपको पता है, अगर बार इक्विलिब्रियम में है तो ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। मींस ऑल द फोर्सेस इन द x डायरेक्शन दैट शुड बी 0, सिग्मा fx इक्वल टू 0, और जहां भी आपका सिग्मा fx इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट? अब देखिए
जे आपकी टेंशन फोर्स है, बिकॉज दिस इज योर प्लेन एंड दिस फोर्स इज गोइंग अवे फ्रॉम द प्लेन, सो दिस इज योर टेंसाइल फोर्स। तो क्या होगा, टेंसाइल फोर्स है तो प्लस लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 100 किलो न्यूटन, राइट। ये आपकी कंप्रेसिव फोर्स है, बिकॉज इट इज गोइंग टूवर्ड्स द सेक्शन, सो दिस इज -170 किलो न्यूटन। तो इसमें जो आ गया -70 किलो न्यूटन। अगर हमने लेफ्ट साइड से किया तो जो पीवीसी की वैल्यू थी, दिस इज -70 किलो न्यूटन, राइट। अब हम देख लेते हैं कि क्या राइट साइड से करने के लिए इतना आएगा। अब देखिए इसमें भी यही कंडीशन है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, ऑल द फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन शुड बी 0। तो 0 कब होगी, ये कितना है -120, ये कितना है 50। तो देखिए ये आपका क्या आ गया, ये 50 माइनस 120, दिस इज इक्वल टू -70 किलो न्यूटन, राइट। तो ये क्या होगा -70 किलो न्यूटन। तो अगर हम इस साइड से भी चलते हैं तो इसको बैलेंस करना है, तो कितनी फोर्स आएगी इसमें, इसमें -70 किलो न्यूटन, राइट, -70 किलो न्यूटन। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो जहां से भी करने से आपको -70 किलो न्यूटन मिला, और अगर हमने इस साइड से जब कैलकुलेट किया तो तब भी आपको कितना मिला, -70 किलो न्यूटन। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो नेक्स्ट वन आई विल टेक द प्लेन CD और उसमें देखिए सो इंटरनल फोर्स आपने प्लेन BC के ऊपर निकाल दिया, और आई थिंक नाउ यू आर क्लियर कंसेप्ट, है ना। तो इसका भी देख लेते हैं हम। सो हियर यू हैव सीन दैट either you calculate the internal force from the left side or you calculate the internal force from the right side, from the plane, from the section, you will get the same value of the internal force। ये आपको समझ आ गया। आप सेक्शन लीजिए, लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करें तो इंटरनल फोर्स आपको आ जाएगी, राइट साइड से करें इंटरनल फोर्स आ जाएगी। लेकिन जब आपने न्यूमेरिकल करना है तो उस वक्त आपको ये दोनों एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं कि इंटरनल लेफ्ट से भी करेंगे राइट से भी करेंगे, क्योंकि सर ने कहा है, सर ने किया है कि लेफ्ट से भी किया है राइट से भी किया है। ये बेसिकली मैं आपको समझाने के लिए दोनों एस्पेक्ट ले रहा हूं, कि आइदर यू टेक इट फ्रॉम द लेफ्ट साइड और यू टेक इट फ्रॉम द राइट साइड। तो मैं दोनों एस्पेक्ट से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट इफ यू take the internal forces from the left side of the section or you take it from the right side of the section, you will get the same magnitude of the force। सेम चीज मैं आपको प्रूव करके बताता हूं। इसमें प्लेन CD में देख लीजिए, ये आपका प्लेन CD है, राइट। मैं कहता हूं कि इंटरनल फोर्स आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट इंटरनल फोर्स। ये आपको न्यूमेरिकल फोर्स को प्रॉब्लम दिया है, एंड इफ आई से कैलकुलेट internal force on plane CD, राइट। तो इंटरनल फोर्स कैलकुलेट करो ऑन प्लेन CD। तो देखो किस तरीके से करना, क्या करेंगे सबसे पहले, व्हाट इज अवर फर्स्ट स्टेप, जिस भी हमने लेना है वहां पे आप सेक्शन ले लीजिए प्लेन की। दिस इज योर सेक्शन ऑफ द प्लेन, ठीक है। नाउ जहां पे आपने सेक्शन लिया, आइदर यू टेक the left part or you take the right part। तो सेक्शन से क्या करना था, मैं कट कर लो, you got it। राइट। इसमें हम फोर्सेस लिख लेते हैं। दिस इज योर 100 किलो न्यूटन, दिस इज योर
170 kilonewton, and this is your 120 kilonewton. ये forces, right? हमें इंटरनल फोर्स निकालनी है. इसी तरीके से जो आपका राइट पार्ट होगा, दिस इज योर राइट पार्ट, सिर्फ ओनली वन फोर्स इज देयर इन द राइट पार्ट, दैट इज 50 किलो न्यूटन, राइट? तो दिस इज योर लेफ्ट पार्ट ऑफ द बार एंड दिस इज योर राइट पार्ट. ठीक है ना? तो पहले मैं first I will consider the left part and calculate the force here. लेफ्ट पार्ट को कंसीडर करता हूं, उस फोर्स के कैलकुलेट करते हैं कि इंटरनल फोर्स इसमें कितनी आएगी. तो सेक्शन से लेफ्ट पार्ट में आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, the forces which are going away from the plane, right? Which are going away from the plane, they are the tensile forces. तो क्यों सा होगा ये 100 tensile force plus sign, 120, this is going away, this is 120, that is also positive sign because it is going away, and minus 170. So 220 minus 170, this is equal to 50 kilonewton. ठीक है? लेफ्ट साइड से कैलकुलेट कर लिया, समझ आ गया ये पॉइंट. This is going away from the section, this is a section, and you have seen its arrow is toward this side, it is going away from the section. So this is tensile force, and tensile force is having a positive sign, that is 100 kilonewton. मैंने नहीं लिखा, मैंने सीधा वैल्यू लिखी. So 100 kilonewton plus this is also 120, it is also going away from the section. So this is also plus 100 plus 120, and this 170, this is going towards the section, its direction is towards the section, so you can say this is the compressive force. So minus 170 and this is 50 kilonewton. तो इंटरनल फोर्स आपने कैलकुलेट किया, इंटरनल फोर्स इसमें कितना आया प्लेन सीडी में, दिस इज 50 किलोन्यूटन, 50 किलोन्यूटन. ठीक है? अगर यही चीज हम राइट साइड से कैलकुलेट करें तो राइट में तो सिर्फ एक ही फोर्स है, एंड वी हैव टू बैलेंस इट. हमें इसको बैलेंस में रखना है. सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, राइट? दिस इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, राइट? तो हमें क्या करना है, इसको बैलेंस में रखने के लिए, ये 50 है तो इधर कौन, इधर क्या आएगा, इस साइड पे कितनी फोर्स आएगी आपकी, इस साइड के ऊपर कितनी फोर्स आएगी. अगर ये 50 है तो इस साइड के ऊपर कितनी फोर्स आएगी, इस साइड के ऊपर भी आपकी फोर्स कितनी आएगी, 50 आएगी. ठीक है? तो ये भी आपका 50 आएगा, तभी तो ये बैलेंस होगा 50 किलो न्यूटन. तो आपने ये चेक कर लिया, आइदर यू गो toward either you take the forces from the left part of the bar or you take the forces from the right part of the bar. Ultimately your result is same, means you will get the same value of the internal force. This is the way how to calculate the internal force. I think it is very much clear to you. तो और ज्यादा क्लियर करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल भी इसका एक और प्रॉब्लम लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं, so that you must know, एक आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरीके से लेना है. जहां तक आई थिंक इसको मैंने एक बिल्कुल इसको बार को काट के एक एक स्टेप इसको कंप्लीट करके आपको बताया है. आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि किस तरीके से हमें इंटरनल फोर्सेस लेनी है. इंटरनल फोर्स लेने के लिए जहां भी प्लेन का इंटरनल फोर्स करेंगे उस प्लेन को आप कट कीजिए. आइदर यू सम द फोर्सेस, आइदर यू टेक द फोर्सेस टुवर्ड्स द लेफ्ट part of the plane, section, or to the right part of the section, and you get the internal force. If you either you take from the left part or the right part, but you will get the same value of the internal force. See? So this is, I think, it is very much clear. इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, right? So this is your numerical. In the numerical, what is given? This is the brass bar, right?
and the brass bar having the different axial forces at the different points. Means you can say at point L, the axial force is 50 kilonewton, M के ऊपर 80 kilonewton है, N के ऊपर 20 kilonewton है, और इसमें P के ऊपर आपकी 10 kilonewton है, right? So the cross-sectional area of the bar is also given. तो given लिख लेते हैं, क्या दिया है? given है आपका cross-sectional area of the copper bar. मटेरियल क्या है? कॉपर है. तो cross-sectional area of the copper bar that is given A. cross-section area को हम A से डोनेट करेंगे, तो A कितना दिया है? A आपका है 1000 मीटर स्क्वायर, राइट? कितना ए दिया है? 1000 मीटर स्क्वायर. दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार. इट इज द हाउ मच? सॉरी, नॉट मीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर. 1000 mm स्क्वायर. This is the cross sectional area of the bar. This is given. And Young modulus of elasticity E. This is also given. E is equal to 100 G gigameter square. Right? 100 gigameter square. This is the Young modulus of giganewton. Meter square. So these things are given to you. You have to find out. क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है आपने टोटल elongation of the bar. First is, and the second what you have to calculate. Find the total, only one thing, total elongation of the bar. Total elongation of the bar you have to calculate. Total elongation of the bar. अब देखिए, हमें जब टोटल elongation of the bar कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है कि ये फार्मूला, you know what is the formula of the elongation? That is delta L. This is equal to P into L upon A into E. क्या आपने पढ़ा है? ठीक. So delta L is equal to P into L upon A E. तो मीन्स हमने इसके ऊपर डिफरेंट लोड एक्ट कर रहा है, तो इसकी इलांगेशन डिफरेंट होगी, इसकी डिफरेंट होगी और इसकी डिफरेंट होगी. तो जो टोटल इलांगेशन होगी डेल्टा L, दिस इज इक्वल टू डेल्टा, हियर इज द डेल्टा टोटल इलांगेशन. Total elongation is equal to delta L1 plus delta L2 plus delta L3, right? This is the total elongation of the bar. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें delta L1 भी निकालना है, delta L2 भी निकालना है और delta L3 भी निकालना है. तो डेल्टा L1 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? P1 L1 A upon E. मीन्स हमें इंटरनल फोर्स में P1 P निकालनी पड़ेगी. इधर इंटरनल फोर्स की Mn की भी निकालनी पड़ेगी और इंटरनल फोर्स हमें Np की भी निकालनी पड़ेगी. ठीक है? तो तीनों को फर्स्ट हमारा स्टेप जो होगा, जहां पे सिर्फ इंटरनल फोर्स निकालना है और बाकी को आपको फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है. That's not much difficult. But here in this problem, again you will understand the concept that how we will calculate the internal force, right? So let us say that मैं internal force ये जो आपका LM प्लेन है, इसमें निकालना चाहता हूं. That is the PLM, right? तो PLM प्लेन में मैंने इंटरनल फोर्स निकाली थी. मैंने इस प्लेन को क्या किया? क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप? एक सेक्शन ले लेनी है आपने. तो मैंने प्लेन के ऊपर एक सेक्शन ले ली. सेक्शन के आइदर मैं लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करूं या राइट साइड से कैलकुलेट करूं, यही बताया था मैंने. तो इंटरनल फोर्स आपकी सेम आनी चाहिए.
अगर मैं लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करता हूं तो सिर्फ एक ही फोर्स है यहाँ पे 50 किलो न्यूटन, एंड दिस इज द टेंसाइल फोर्स विच इज बिकॉज इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द सेक्शन। तो मैं कह सकता हूं 50 किलो न्यूटन, तो मैं इसको P1 रख देता हूं। P1 आपका P एलिमेंट आ गया 50 किलो न्यूटन। अब देखिए चेक करना है, अगर आप चेक करना चाहते हो तो मैं चेक करके दिखा देता हूं आपको कि आपका एक वो कंसेप्ट भी रिपीट भी हो जाएगा और आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट साइड से मैंने किया 50 किलो न्यूटन। अगर मैं सपोज करो, आप कहते हैं कि नहीं सर लेफ्ट साइड से नहीं करना, राइट साइड से इसको हमें बताइए, ठीक है? तो राइट साइड से दिखाएंगे, ये आपका सेक्शन है, राइट? ये देखिए 80 किलो न्यूटन, ये क्या है? दिस इज गोइंग 80 किलो न्यूटन, दिस इज गोइंग अवे फ्रॉम द सेक्शन, राइट? अगर मैं राइट साइड से करूं तो 80 किलो न्यूटन, दिस इज गोइंग अवे फ्रॉम द सेक्शन, तो दिस ये क्या होगा? टेंसाइल फोर्स होगी। दिस इज पॉजिटिव 80 किलो न्यूटन इज द पॉजिटिव। 20 किलो न्यूटन, दिस इज आपने इस प्लेन इस सेक्शन को देखना है, ना कि इस सेक्शन को इसको देखो, क्योंकि हम जहां से कैलकुलेट कर रहे हैं। 20 किलो न्यूटन, दिस इज गोइंग टूवर्ड द सेक्शन, दिस इज द कंप्रेसिव फोर्स, तो ये आपका -20 किलो न्यूटन। एंड 10 किलो न्यूटन, दिस इज आल्सो गोइंग टूवर्ड्स द प्लेन सेक्शन, दिस इज आल्सो कंप्रेसिव, सो -10 किलो न्यूटन। तो 80 और 30 माइनस करो तो 50 किलो न्यूटन। क्लियर हो गया? ये भी आपका 50 किलो न्यूटन आया, लेफ्ट साइड से किया 50 किलो न्यूटन आया। इसमें आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ी, क्योंकि इसमें आपके 3 फोर्सेस थे, इसमें आपका कोई फोर्स नहीं था। इसलिए जब आप न्यूमेरिकल्स करते हैं, जहां से हम सेक्शन लेंगे, तो उसमें देखना है कि किस साइड के ऊपर फोर्सेस कम है और किस साइड के ऊपर फोर्सेस ज्यादा है। कोशिश यही करनी चाहिए, जहां पे फोर्सेस कम है उस साइड से आप इसका कैलकुलेशन कर लो, दैट एक्चुअली बिकम्स इजी फॉर यू। तो ये आपका कैलकुलेट कर लिया, P1 आपका आ गया, राइट? सो P1 यू हैव कैलकुलेटेड। अब मैं कहता हूं कि आप सेक्शन MN जो आपकी है, मैं इसको P2 से रिप्रेजेंट करता हूं। इंटरनल फोर्स इसमें क्या है? P2, एंड दिस इज P प्लेन कौन सा? प्लेन PMN, है ना? ये मैंने सेक्शन ले ली, राइट? ये सेक्शन ले ली, तो लेफ्ट साइड से काउंट कीजिए, आप लेफ्ट साइड से काउंट कीजिए। लेफ्ट साइड से ये आपका सेक्शन है, एंड दिस फोर्स 50 किलो न्यूटन, दिस इज गोइंग अवे फ्रॉम द प्लेन, तो ये आपका टेंसाइल फोर्स होगी और ये प्लस में होगी 50 किलो न्यूटन। 80 किलो न्यूटन, इस प्लेन के बीच में क्या है? 2 फोर्सेस है ना सर, ये प्लेन है, ये 2 फोर्सेस है, 50 किलो न्यूटन एंड 80 किलो न्यूटन। At 80 kilonewton, this force is going towards the section. So this is your minus 80 kilonewton. This is equal to minus 30 kilonewton, right? समझा गया? कितनी आई? -30 kilonewton. तो जहां पे आप -30 kilonewton लिख लीजिए, P2 आपने कैलकुलेट कर लिया, -30 kilonewton। अब मैं हमारा अगला क्या स्टेप है, क्योंकि हमें चेंज इन लेंथ तो जिसकी भी निकालना पड़ेगी, तभी तो टोटल लेंथ निकलेगा NP। तो PNP की फोर्स को मैंने PNP, अब इसको कैलकुलेट करें। मैंने ये सेक्शन लिया है, इसमें इसको आप भूल जाए पिछले 2 सेक्शंस को। इसमें राइट साइड में आप देखिए सिर्फ एक फोर्स है, एंड दिस इज गोइंग टुवर्ड्स द सेक्शन, सो दिस इज अ कंप्रेसिव फोर्स। तो मैं कह सकता हूं दिस इज -10 किलो न्यूटन, राइट साइड का दिया मैंने, क्योंकि वहां पे सिर्फ, अब आप लेफ्ट से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो लेफ्ट से भी कैलकुलेट कर लीजिए, इस सेक्शन के लेफ्ट से कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए 50, दिस इज गोइंग अवे फ्रॉम दिस सेक्शन, तो प्लस आएगा 50 किलो न्यूटन। 20, दिस इज आल्सो गोइंग अवे फ्रॉम द सेक्शन, दिस इज +20 किलो न्यूटन। क्योंकि आपने देखा कि इस सेक्शन के बीच में कितनी फोर्सेस है? 3 फोर्सेस है, ठीक है? 50 भी टेंसाइल फोर्स है, 20 भी टेंसाइल फोर्स है, क्योंकि ये सेक्शन से इधर जा रही है, एंड 80, दिस इज द कंप्रेसिव फोर्स, दिस इज गोइंग टुवर्ड द सेक्शन, सो -80 किलो न्यूटन। 50 और 20 70, एंड दिस इज अगेन
-10 किलो न्यूटन। समझा गया? मेरा यही न्यूमेरिकल करवाने का मेरा यही एक पॉइंट था कि मैं दोबारा कंसेप्ट को रिपीट करूं, और ये आपने कंसेप्ट दोबारा रिपीट हुआ, ये आपने देख लिया कि किस तरीके से हम इंटरनल फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड लें या राइट साइड लें, तो इंटरनल फोर्सेस आपकी क्या होंगी? सेम होंगी। तो अब आपके पास इंटरनल फोर्सेस आ गए, तो अब हमें टोटल इलांगेशन निकालनी है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे। तो जैसे मैंने बताया टोटल इलांगेशन का ये डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ ऑफ दिस प्लेन LM प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ दिस प्लेन MN and plus change in length of this plane NP. So total change in length of all these three planes, that will give you the total deformation or total elongation of the bar. ठीक है? तो इसमें डेल्टा L1 क्या होता है आपका? P1 L1 अपॉन AE। मैं A1 E1 इसलिए नहीं लिख रहा हूं बिकॉज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया is constant, that is 1000 mm square throughout. This is just like a you can say this is the cross section area of this is constant here. तो A को मैंने ऐसे ही रहने दिया। E1 इसलिए नहीं लिखा because it is made of copper, it is not a composite bar, it is made of only one material, so Young modulus of elasticity for all the three planes that also be same. तो मैं लिखूंगा P1 L1 upon A plus P2 L2 upon AE plus P3 L3 upon AE, right? This is your total delta L. This is total delta L. राइट? समझ आ गया ये पॉइंट? टोटल डेल्टा एल आपके पास आ गया P1 L1 upon AE प्लस P2 L2 upon AE प्लस P3 L3 upon AE। बाकी ये सारी चीज वैल्यूज आपके पास है, पुट कर दी। P1 आपने निकाला है, सो देयरफॉर डेल्टा एल, टोटल डेल्टा एल कितना होगा? P1, what is P1? That is 50 किलो न्यूटन 10⁻³ L1 this is 0.6, इसका L1 कितना है? 0.6 डिवाइडेड बाई AE तो कॉमन आएगा सभी का, इसको हम बाद में वैल्यूज पुट करेंगे, राइट? इसी तरीके से प्लस P2, what is P2? -30 into 10⁻³ What is the length of this? This is 1.0 divided by AE, that is also same AE, that is also same, and third one क्या आएगा? प्लस इधर का लेते हैं हम थर्ड वन P3, इसको भी ब्रैकेट में रख लीजिए आप, -10 into 10⁻³, right? What is L1 here? Into 1.2 divided by AE, right? Divided by AE. समझा गया? Up to this is clear. This is the total elongation. अब देखिए इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे, अब डेल्टा एल दिस इज इक्वल टू, देखिए ये आपका 10⁻³ कॉमन आना चाहिए, तो AE भी आपका कॉमन होगा, तो मैं A की वैल्यू लिख लेता हूं, क्या है? 1000 mm स्क्वायर है, इसको मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ करता हूं, राइट?
एंड ई दिस इज 100 गीगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इसको भी मैं एमएम मीटर स्क्वायर है एमएम स्क्वायर में करने के लिए दिस इज 10⁻⁶ 1000 into 10⁻⁻⁶ एंड इसको करने के लिए 100 क्या करेंगे इसको 100 into 10⁻⁹ this is 100 into 10⁻⁹ राइट। ये 10⁻³ मैंने काम ले लिया, बीच में आया 50 into 0.6 minus 30 into 1 minus 1.2 yes minus 12 right minus 12 राइट। तो आगे देखिए इसमें ये 10⁻³ और ये 3 कैंसिल हो गया, 10⁻⁹ और 10⁻⁶ दिस ये आपका आ गया डेल्टा एल इज इक्वल टू 1/10⁻⁵, बीच में क्या बचा 50 into 0.6 दिस इज 30 minus 30 है ना, minus 12 right। So therefore delta L is equal to 0.00000012 मीटर माइनस साइन लगेगा मीटर में, और अगर आपने एमएम में करना है जाएगा -0.012 mm right। So negative sign shows that there is a compression of the bar। नेगेटिव साइन क्या शो करेगा, देयर इज ए कंप्रेशन ऑफ द बार -0.10, देयर इज ए कंप्रेशन ऑफ द बार। तो जहां पे क्या होगा, दिस इज द टोटल इलोंगेशन 0.12 mm, ये मैं mm में लिया, दिस वैल्यू इज इन द मीटर। सो दिस इज द वे दैट हाउ वी विल कैलकुलेट टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार। और इसमें आपने देखा कि टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार निकालने के लिए भी हमें जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हमें इंटरनल फोर्सेस को कैलकुलेट करना पड़ा, राइट। तो दिस इज सो आई हैव सेड यू दैट इंटरनल फोर्सेस कैलकुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल्स आपको दिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हम करते हैं, जस्ट सी हियर। So this is the question which I have written already here. Question is that the two cylindrical rigid bars, they are just joined or connected like this at V. The bar AB is made of steel and the bar BC that is made of brass. Its other dimensions are given in the figure. That its diameter is this bar diameter that is 30 mm and the diameter of this bar this is 50 mm. Length of the bar is also given that the bar AB is having length of 250 mm whereas the length BC that is 300 mm. Young modulus of elasticity for the steel
that is given 200 GPa, and the Young modulus for the brass bar, that is given 105 GPa. But we have to calculate here total deflection of the complete bar, right? जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही ये क्वेश्चन है. दिस इज ए कंपोजिट टाइप ऑफ बार. तो वी कैनॉट टेक द एंटायर डिफ्लेक्शन बाय कंसीडरिंग फ्लाइट फ्रॉम हियर टू हियर बिकॉज इट इज ए कंपोजिट बार. इट्स यू हैव सीन हियर इट्स एरिया इज नॉट कांस्टेंट, राइट? Its area is not constant, its length is not constant. Its, you can say, Young modulus of elasticity, that is also different. So we cannot take the entire, we cannot take the, you can say, total deformation of the entire wire. So what we will do, our first step है कि हमारी जो total deflection होगी उसका फार्मूला लिखते हैं कि total deflection जो आपकी होगी, suppose del L, this is your total deflection, and this is equal to del L AB plus del L BC. This is the total deflection of the bar, right? अब हमें क्या निकालना है? del L AB plus मीन्स हमें निकालना है, ये होगा P1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस P2 L2 A2 upon E2. So here from the figure you have seen that L1 is given, that is 250 mm. L2 is also given 300 mm. Area of the cross section we can calculate by using the formula. This is diameter of the bar because this is your cylindrical bar. तो diameter दिया है, this is pi by 4 into d1 square, ठीक है ना? तो हमारा ये क्रॉस सेक्शन एरिया भी निकल जाएगा. Young modulus of elasticity, that is also given in the problem. और हमें प्रॉब्लम क्या है कि we have to calculate only P1 and P2. हमें P1 और P2 की वैल्यू चाहिए. इंटरनल फोर्स P1 इसमें क्या होगी और P2 आपकी क्या होगी. तो क्या करते हैं, एक सेक्शन ले लेते हैं. हम पहले AB की इंटरनल फोर्स निकाल लेते हैं. तो AB की इंटरनल फोर्स क्या आएगी, सपोज PAB, this is equal to P1. तो मुझे ये मैंने सेक्शन लिया, सेक्शन के ऊपर only this force and this is coming towards the section, so it means this is compressive force, so minus 30 किलो न्यूटन. इट्स ओके, ठीक है, ये निकल गया आपका, ठीक है. अब आप ले लीजिए, आप BC का आपने लेना है, तो जहां पे आप एक सेक्शन ले लीजिए BC में, राइट? तो BC में आपने सेक्शन लिया तो PBC दिस इज इक्वल टू P2. तो एक ही साइड के ऊपर फोर्सेस हैं ये कौन से, -30 किलो न्यूटन, और JB -40. दिस इज आल्सो कमिंग टुवर्ड्स द सेक्शन. दिस इज कंप्रेसिव फोर्स आल्सो -40 किलो न्यूटन, सो दिस इज -70 किलो न्यूटन, राइट? समझा गया? तो P1 और P2 फोर्सेस भी हमें मिल गया, -30 किलो न्यूटन एंड -40 किलो न्यूटन. तो आप क्या करेंगे, इसमें पुट कर दें वैल्यू, राइट? माइनस पुट कर दें तो आपका निकल जाएगा -30 इंटू व्हाट इज योर L1 250 10⁻³ भी तो ले लो, किलो न्यूटन में है, ठीक है ना? डिवाइडेड बाय व्हाट इज योर A1, यह आपका आएगा pi by 4 इंटू 30 का होल स्क्वायर. ये एरिया आ गया. एरिया हमें क्या डायमीटर दिया है 30 mm. तो व्हाट इज योर E1 फॉर द स्टील, दिस इज योर E1 एंड दिस इज योर E2. दैट इज 200 इंटू 10⁻³ MPa, राइट? प्लस मैं इसको मिटा देता हूं, राइट? ये आपका एक हो गया, इसको ब्रैकेट में कर लो, राइट? अब P2 क्या है, -70 किलो न्यूटन, तो ये आ गया -70 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट कर लो जल्दी. व्हाट इज योर L2, दिस इज 300
दिस इज पाई बाई 4 to 50 का होल स्क्वायर into 105 10 raised of 3, right? This is your, now you calculate it, calculate कर लो, 10 और 3 कैंसिल कर दो, एक जीरो ये कैंसिल हो गया, एक जीरो ये कैंसिल हो गया, इसी तरीके से 10 और 3 कैंसिल कर दो, यस, और आप ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लो, तो फर्स्ट पार्ट का आया -0.53, चेक करते जाना, -0.053, आप दूसरे का कर लेते हैं, दूसरे का कितना आया, -0.102, so this is minus आया जी, -0.102, राइट, सो टोटल कितना हो गया, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस हो जाएगा, -0. .155, so this is 0.155 mm. So this is the total deformation of the bar, and minus sign shows that there is a compression of the bar, or you can say there is a reduction in the length of the bar. So first step आपने कर लिया, अब second step को देखते हैं किस तरीके से करना है. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा सेकंड पार्ट क्या था जो हमने करना था, सेकंड पार्ट देखिए, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी. देखिए इसमें कंसेप्ट है, कैलकुलेशन इतनी नहीं है, बट देयर इज ए कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड. हमने निकालना है डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट बी, राइट. अब ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, इसको बड़े ध्यान से सुनिए, इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ नहीं है, इसको सिर्फ आपने समझना है और वहां से आपको सारी चीजें क्लियर होंगी. देखिए राइट नाउ, अभी आप देखिए, राइट नाउ द पॉइंट बी इज हियर, राइट. अभी जो पॉइंट बी है वो इस पॉइंट के ऊपर है, राइट नाउ द पॉइंट बी इज हियर. नाउ व्हेन वी अप्लाई द लोड ऑन दिस rod BC, this is 40 kilonewton load that is applied on the rod BC. Forget about the rod AB. AB को आप भूल जाइए, हमें डिफ्लेक्शन पॉइंट B की निकालनी है. So when we will apply the load on the rod BC, what happens? ये जो पॉइंट B जहां पे था, ये मैं कहता हूं कि ये पॉइंट B जहां से जहां नीचे शिफ्ट हो गया, राइट. सो ये क्या होगी, डिफ्लेक्शन. तो डिफ्लेक्शन इसमें कितनी होगी, बी डैश, क्योंकि ये पॉइंट सी फिक्स है, ऊपर से लोड लगाएंगे तो ये मूव करेगा कहां पे, ये इस तरीके से मूव करेगा नीचे को. अब पॉइंट सी फिक्स है,
इसका मतलब ये हुआ कि जो ये चेंज इन लेंथ इन बीसी थी, ये बड़ा अंडरस्टैंड करने वाला पॉइंट है। सो चेंज इन लेंथ, जो बीसी में जो चेंज इन लेंथ हुई, दैट लेंथ इज हैपेंड ड्यू टू द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी, क्योंकि सी तो फिक्स है, सी तो मूव किया नहीं, तो चेंज इन लेंथ हमने निकाली ना बीसी की। अभी जो दो पार्ट का मैंने टोटल डिफॉर्मेशन में मैंने चेंज इन लेंथ बीसी का भी निकाला, चेंज इन लेंथ एबी का भी निकाला। अब पॉइंट ये है कि चेंज इन लेंथ बीसी का किस तरीके से कैसे हुआ, बिकॉज सी पॉइंट तो आपका फिक्स था, जे पॉइंट तो आपका नीचे मूव नहीं कर सकता था, दैट कैन नॉट बी मूव। सो हियर यू कैन से कंसेप्ट अब क्या पे आता है, पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जो डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट बी होगा that is equal to the change in length of the bar BC. Point समझा है? So deflection of the point B, आप कह सकते हैं deflection, मैं लिखूंगा यहां पे deflection of point B means BB dash. This is equal to, ये किसके बराबर होगा, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड और बार, जो भी लिखे आप, चेंज इन लेंथ ऑफ द बीसी, बिकॉज ये पॉइंट नोट कर लो, बिकॉज सी इज द फिक्स्ड पॉइंट एंड सी कैनॉट मूव। बस ये पॉइंट है जो इसमें आपने समझना है। अगर आपने डिफ्लेक्शन पॉइंट बी की निकालनी है तो क्या होना चाहिए, जो उसका दूसरा पॉइंट है सी, वो फिक्स होना चाहिए। ये बाद में नोट लिखाऊंगा आपको, बट जहां पे देखिए आप, क्योंकि सी पॉइंट फिक्स था, अब इसकी जो डिफ्लेक्शन हुई, डिफ्लेक्शन तो होगी क्योंकि लोड इसके ऊपर पड़ रहा है, कंप्रेशन होगी इसकी। अब जो इसकी डिफ्लेक्शन होगी वो चेंज इन लेंथ ऑफ बीसी होगी, जो बीसी की चेंज इन लेंथ होगी वो होगी, इसलिए आपका डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी, बीबी डैश, दिस इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ द बीसी, बिकॉज सी इज ए फिक्स, और चेंज इन लेंथ ऑफ द बीसी तो आपने निकाला है, चेंज इन लेंथ ऑफ द बीसी कितना था, चेंज इन लेंथ ऑफ VC जब भी कैलकुलेट किया -0.102 mm, सो -0.02 mm, दिस इज द डिफ्लेक्शन। तो आपका देयरफॉर डिफ्लेक्शन क्या हुआ, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट B, दिस इज इक्वल टू -0.102 mm। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। तो इस तरीके से आपने डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी निकाल दिया, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये प्रॉब्लम तो आपकी ओवर हो गई, अब इसमें थोड़ी सी चीज और ऐड करूंगा, मैं इसको मिटा देता हूं, राइट। आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए इसे, और उसके बाद नेक्स्ट मैं अभी आपको बताता हूं। तो दिस प्रॉब्लम इज ओवर, जो हमें पूछा हुआ था वो हमने बता दिया। अच्छा, इसमें एक नोट बनता है, नोट लिख लेते हैं हम। नोट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, जो आप नोट कर लेना। नोट पॉइंट है, इफ यू वांट टू फाइंड द डिफ्लेक्शन of any point, then the other point should be fixed. Other point should be fixed.
दूसरा पॉइंट फिक्स होना चाहिए। अगर फिक्स नहीं होगा तो नहीं निकाल सकते। अगर फिक्स नहीं होगा तो क्या होगा, जब आप लोड लगाएंगे पॉइंट बी भी मूव करेगा, पॉइंट सी भी मूव करेगा, आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, यू राइट डाउन दिस पॉइंट, ये नोट है, ये आप लिख लीजिए। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें इफ आई वांट टू फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए, ये पूछा तो नहीं है, मैं बताता हूं। अगर डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए निकालना है, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए, अगर मैं आपको कहता हूं, क्वेश्चन में आ जाता है कि पॉइंट ए की डिफ्लेक्शन निकालो। अब देखिए, पॉइंट ए की अगर डिफ्लेक्शन निकालता हूं मैं, ये जो लोड लग रहा है बार ए बी के ऊपर और ये लोड लग रहा है बार बी सी के ऊपर, पॉइंट जब ये लोड लगा, पॉइंट ये मूव किया, जब ये पॉइंट ए मूव किया तो इसका मतलब पॉइंट बी भी मूव किया, दोनों पॉइंट मूव किए। जब पॉइंट बी मूव किया तो ए और मूव किया। ठीक है, मेरा पॉइंट समझे आप? इसलिए वी विल नॉट कंसिडर द बार ए बी, वी विल नॉट consider the bar AB for calculating the deflection of point A. Reason is the bar AB is not fixed one. पहला तो ये जो मैंने नोट लिखा तो ये पहले आप अपने दिमाग में रखिएगा, ये आगे मैरिकल्स में भी आएगा। Because point B is not fixed, so we will not consider the bar AB, but we will consider whole of this length. We will consider whole of the bar ABC. हमें कि टोटल जो इसकी चेंज इन लेंथ होगी, जो टोटल चेंज इन लेंथ इसकी जो होगी, वो चेंज इन लेंथ जो आपको आपकी डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए होगी। तो डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल मींस डेल्टा एल ऑफ ए बी प्लस डेल्टा एल ऑफ बी सी। पॉइंट समझिए आप, क्योंकि ये सी पॉइंट, इसके बाद पॉइंट फिक्स कहां पे है, है, तो इसलिए हमें ये इंटायर लेंथ लेना पड़ेगी फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट बी इज नॉट फिक्स, क्योंकि अगर ए डिफ्लेक्ट होगा तो बी भी डिफ्लेक्ट होगा, तो ये तो फिक्स नहीं है, ये वो नीचे जाएगा। तो हमें जो मैंने नोट लगाया था, नोट क्या था कि अगर आपने किसी पॉइंट की डिफ्लेक्शन निकालनी है तो जो उसका अदर पॉइंट होगा दैट शुड बी फिक्स। तो डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए टोटल चेंज ऑफ लेंथ एल ए बी, इसकी प्लस इसकी, तो इनकी मैंने निकाली थी 0.053 माइनस 0.102, है ना, और दिस इज इक्वल टू माइनस 0.155 mm। समझ आ गया? ये अगर कोई पूछता है डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए निकालो, कैसे निकालो, राइट? तो चलो अगला प्रॉब्लम देखते हैं। दिस इज एन एक्शन न्यूमेरिकल, जो मैंने जो ड्रा किया फिगर, उसमें क्या है कि बोथ द पोर्शन ऑफ द रॉड्स, both the portions of the rod are made of aluminium। ठीक है, ये दोनों रॉड्स के पोर्शन जो एल्यूमिनियम के बने हैं, तो इसका मतलब है कि यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी जो गिवन है आपका, गिवन में क्या दिया है, यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी दोनों का सेम होगा, एल्यूमिनियम का है, दैट इज 70 GPa, राइट, 70 right, 70 GPa, that is given as 70 GPa, and length of the rod is given, everything is given. We have to calculate, what we have to calculate, P is also given 4 kilonewton, so we have to calculate क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है Q की वैल्यू, हमें कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q?
और इसमें उसने एक कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन? दैट इज आल्सो गिवन। कंडीशन इज गिवन। क्या कंडीशन दिया है? डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ए, देयर इज नो डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ए। अब डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ए इज 0। डिफ्लेक्शन एट ए, this is equal to 0. So this is the problem that is given as that both the portion of the rods are made of aluminium and they are connected like this, right? The length of the rod AB, this is 0.4 meter. The length of the rod BC, this is 0.5 meter. The load P is given here 4 kilonewton, whereas we have to calculate the load Q. What is the load Q here, right? And the condition is given that the deflection at A is equal to 0. अब देखो इसी कंडीशन के ऊपर हमारा सारा न्यूमेरिकल है। ये जो डिफ्लेक्शन एट A इज इक्वल टू 0 दिया है, इसी के ऊपर हमारा न्यूमेरिकल है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? Q की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे अभी मैंने आपको इस प्रॉब्लम से पहले जो पहली प्रॉब्लम थी, इसमें जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इफ द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट A तभी 0 होगी। कहां से 0 होगी? अदर पॉइंट दैट शुड बी ए फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज C। दूसरा पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है? B नहीं है, C है। सो वी विल नॉट टेक द डिफ्लेक्शन ऑफ AB ओनली, वी विल नॉट टेक द चेंज इन लेंथ ऑफ AB ओनली, वी विल टेक द चेंज इन लेंथ ऑफ द AC ओनली। दूसरे कहा है कि डिफ्लेक्शन आपका 0 है, तो मीन्स डिफ्लेक्शन ऑफ A, डिफ्लेक्शन ऑफ A कैसे होगी? Deflection of A, this is equal to change in length of AB plus BC, right? Change in length of AB plus BC and given क्या दिया है? This is equal to 0. समझ आ गया पॉइंट है? तो इसका मतलब आपने क्या करना है? डेल्टा L total deformation, delta L, this is equal to delta L AB plus delta L BC और इसे इक्वेट करना है 0 के साथ। समझ आ गया पॉइंट? डेल्टा L AB प्लस डेल्टा L BC, दिस इज इक्वल टू 0। इसके साथ आपने इक्वेट करना है। बात समझ आई? समझ गया पॉइंट? क्यों करना है? बिकॉज ही हैज गिवन डिफ्लेक्शन एट पॉइंट A, दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि अगर हमारी डिफ्लेक्शन A की 0 है, तो डिफ्लेक्शन A में कब होती है? व्हेन द टोटल चेंज इन लेंथ, हम कहां से लेंगे? AB की भी लेंगे और BC की भी लेंगे, बिकॉज C पॉइंट जो फिक्स है वो इधर है, तो टोटल चेंज इन लेंथ दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी और इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। तो डेल्टा AB क्या होगा? P इंटू L, ठीक है ना? पहले फार्मूला लिख लेते हैं, AE, राइट? प्लस जब मैं P1 कर लेता हूं, ये चीज P2 कर लो, P2 L1 कर लो, ये A1 भी कर लो, ठीक है ना? P2 L2 अपॉन AT इंटू E। समझा गई बात? अब हमें क्या करना है? मीन्स P1 और P की कोई वैल्यू निकालनी है। तो ये जहां पे अपने सेक्शन ले लिया, तो सेक्शन में जो P1 की वैल्यू आई इसके ऊपर यही है 4 किलो न्यूटन, तो इट इज गोइंग अवे फ्रॉम दिस। सो P1 आपका क्या आया? P1 इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन, राइट? फर्स्ट इंटरनल फोर्स इन द रॉड AB, ठीक है? आप इधर सेक्शन ले लीजिए, तो इसमें क्या इंटरनल फोर्स क्या आई? इंटरनल फोर्स इन BC की इंटरनल फोर्स में B2 से लिख रहा हूं, तो दिस इज इक्वल टू P कहां पे है? दिस इज गोइंग अवे, तो ये पॉजिटिव होगा P, एंड दिस इज गोइंग टुवर्ड्स द प्लेन माइनस Q। तो इंटरनल फोर्स इन दिस इज इक्वल टू P माइनस Q। तो P तो आपके पास है, P1 कर लो इसको, राइट? तो आप कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू 4 माइनस Q, राइट? 4 माइनस Q 10⁻³ न्यूटन में कर लो, ये भी न्यूटन में है। समझ आ गया ये पॉइंट? जहां तक इट्स क्लियर टू यू। अब देखिए इसके आगे,
तो मैंने P1 और P2 इंटरनल फोर्सेस दोनों प्लेन के ऊपर दोनों सेक्शंस में निकाल दी हैं, रॉड AB की भी और BC की भी। अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है, न्यूमेरिकल्स निकाल लेना है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। व्हाट इज योर P1, दिस इज इक्वल टू, ये जीरो कर लो, दिस इज इक्वल टू जीरो। P1 L1 प्लस P2 L2 इज इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा मैं ऊपर से मिटा देता हूं। तो P1 क्या था आपका, पुट कर ले 4 इंटू 10⁻³ इंटू व्हाट इज L1, 400 mm, 0.4 मीटर था, mm में कन्वर्ट कर लिया। व्हाट इज योर A1, मैंने ये लिखा ही नहीं, इसका इसने 20 mm डायमीटर था और इसका आपका 60 mm डायमीटर था, राइट। pi/4 into 20 का स्क्वायर एंड E आपकी थी 70 into 10⁻³ राइट। ये का पास कर दी मैंने, इसको मैं का पास कर में कर दिया प्लस। अब P2 क्या है, 4 - Q into 10⁻³ into 500 divided by A2 pi/4 into 60 का स्क्वायर, here with 70 to 10⁻³ and this is equal to 0, right? This is equal to 0। ये 10⁻³ भी चला जाएगा, कॉमन आएगा, आगे 0 है, निकल जाएगा ये, राइट। फिर आपका ये pi/4 नीचे से ये भी चला जाएगा, 70 ये भी चला जाएगा, राइट। तो अब आपके पास क्या आया ये, तो ये आपका आ गया this is equal to 4 into 400 20 square plus 4 minus Q into 500 60 square। Now by solving, आप सॉल्व करके Q की वैल्यू निकाल लो। By solving, what is the value of Q? Find out. So this is 32.8, note कर लेना, 32.8 kilonewton। So this is your answer and this is your problem। I just feel that there are two more problems which I want to take up, but your lecture is already too lengthy। So tomorrow my lecture is regarding the statically determinate and indeterminate bars. What is that statically determinate and indeterminate members? On that my lecture is there, but before going for that lecture I just solve 2 more problems. That is a very important and very conceptual one. So up to today, so this is the end of my lecture. So next lecture tomorrow morning I will take up. So thank you very much.